Recording is in progress. Thank you. Got it, Alexa. Okay, chalo bhaiya. A very good morning to everyone. A very good afternoon, and at the same time, evening to everyone. We'll will directly dive into the academic spot. See, we have already discussed time and time again that we are doing current electricity. This is the 13th episode, but this is the 15th video. You all know the reason why. Fine? Fine. Now, we are in the topic called combination of resistors, and we'll continue to do the numericals on these theory. And this is the third part of the numerical. Third part of the numerical. See, I have already mentioned it again and again that this exercise, the theory part is over. There's nothing much left in theory except one thing which we'll do at the end. But all it requires is numericals, numericals, numericals. So what we'll do is, I have told you time and again that we'll start from very basic and slowly, gradually, we'll develop the game. And it's time we start leveling up the game. Let's do it. So आज शुरू करते हैं. Okay, but for that, now I'll shut off the camera. Fine. Now it's perfectly fine. Now I can keep the tab down. I can start working on it. Chalo, let's start. Okay. What is the first question that we have over here? What they have said is, look over here. Three resistors, 2 ohm, 3 ohm, and 4 ohm are connected in series, and number option B is in parallel. Draw the arrangement and find the equivalent resistance in each case. क्वेश्चन समझ में आ गया? सीधा सा क्वेश्चन है ए. बोला है आपके पास 3 रेजिस्टर्स है. क्या है? 3 रेजिस्टर्स है. एक है रेजिस्टर्स 2 ओम का, एक है 3 ओम और एक है 4 ओम. 4 रेजिस्टर्स है, सॉरी 3 रेजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है. इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3. जो पहला ऑप्शन है वो बोला है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. SERIES. when they are connected in series, they will look somewhat like this. यहाँ पर हो गया 2 ओम, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4, और ये हो गया एक दूसरा एंड. ये एंड X, ये एंड Y, और सारा रेजिस्टेंस इसके बीच में जुड़ा हुआ है. So as a result, they are in series, and we know that in series the equivalent resistance is क्या होता है? अरे भाई कितनी बार बता चुके हैं. In series the equivalent resistance is simply the algebraic addition. R equivalent is R1 plus R2 plus R3, that is 2 plus 3 plus 4, that is 9 ohm. Answer. Fine. And number B, they have said it is connected in parallel. The moment they are connected in parallel, it will be somewhat like this. This, and all the 3 ends are connected to the same terminal. This is point X, this is point Y. ये हो गया आपका 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम. नाम दे दो R1, R2, R3 in parallel. What will happen? देखो भैया, सीरीज में होता है algebraic addition. सीरीज में होता है algebraic addition, but in parallel it becomes reciprocal addition. उल्टा reciprocal addition. That is 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स है, इसलिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज किया, ये वाला फॉर्मूला. R equivalent is equals to R1 into R2 by R1 plus R2. ये कब यूज करेंगे? जब सिंपली 2 होगा, और यहाँ पे 2 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. फाइन. तो एलसीएम कर लो. एलसीएम आएगा इसका 12. 12 में 2,
6, 12 divided by 3 4, 12 divided by 4 3, this turns out to be 10, 13 by 12, तो ये है 1 by r इक्विवेलेंट। तो अगर आपको r इक्विवेलेंट चाहिए तो बस रेसिप्रोकल ले लो, तो आंसर आ जाएगा 12 by 13 ओम। आंसर फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। डन, इट फाइन, बस खत्म, बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक ओवर हियर व्हाट दे हैव सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार शांति से आप ट्राई करो, खुद से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वरना फिर वीडियो को पॉज कर दो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। अगर नहीं कर पाओगे तो ठीक है, फिर से कर लेना, देख के कर लेना। चलो, what resistance must be connected to a 15 ohm resistance to provide an effective resistance of 6 ohm? बात समझ में आया? क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक 15 ओम रेजिस्टर है, आपके पास एक रेजिस्टर है R, मान लेते हैं 15 ओम का, ठीक है। इसमें क्या ऐड क्या ऐड किया जाए, इसमें एक मान x ओम एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाए, x ओम का एक रेजिस्टेंस ऐड किया जाए, और कैसे ऐड किया जाए ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो हो जाए 6 ओम का। अब एक बार आप खुद सोचो, आपके पास ऑलरेडी 15 ओम है, पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 6 ओम, विच इज लेस देन 15 ओम, विच इज लेस देन 15 ओम। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो एडिशन होगा मस्ट बी इन पैरेलल अरेंजमेंट, मस्ट बी इन पैरेलल अरेंजमेंट, because the resistance of the combination decreases। so हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे ऐसे। सॉल्यूशन, let a resistance of x ohm be connected to 15 ohm resistor in parallel, that is मेरे पास ऐसा एक 15 ओम रेजिस्टर है, एक R 15 ओम रेजिस्टर, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है कितना x ओम को हम पैरेलल में जोड़ दिया, ये हो गया, इसको पैरेलल में कर दिया, ये टर्मिनल x टर्मिनल y, ताकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में वो हो जा रहा है मेरा कितना, R इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो है 6 ओम। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देयरफॉर हम डायरेक्टली बोल दें R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सिंपली R into x by R plus x, क्योंकि सिंपली यहाँ पर दो रेजिस्टर्स है R और X, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू बाय सम ऑफ द टू, बस खत्म। R इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 15 into x by 15 plus x। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा विच इंप्लाइज 6 into 15 plus x is equals to 15x, which implies ये कितना हो जाएगा, 6 into 15 is 90, 30, 60, 90 plus 6x is equals to 15x। तो यहां से 9 क्या हो जाएगा, 90 is equals to 15x minus 6x, तो 90 is equals to 9x, that means 9x is equals to 90, so x is equals to 90 by 9 which is equals to 10 ohm। आंसर बस हो गया, खत्म। देखो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया आपको? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो पैरेलल में करना होगा, कितना करना होगा मुझे पता नहीं है, हम मान लिए x, हो गया खत्म। और इसे बहस नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो टाइम बहुत कम है। ओके देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, इसे बोला है वी हैव 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम
3 ohm 2 ohm are connected together, आर कनेक्टेड टुगेदर, पर ये नहीं बोला है कि कैसे कनेक्ट हुआ है, इट्स जस्ट दैट दे आर कनेक्टेड टुगेदर। फाइन, बहुत मजा। सो दैट द टोटल resistance is greater than 6, the total resistance is greater than 6, कि जो R इक्विवेलेंट है, जो R इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर देन 6 ओम है। कितना है नहीं पता मुझे, बट 6 ओम से ज्यादा है, एंड लेस देन 8 ओम, एंड इन आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो लेस देन 8 ओम है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो बात समझ में आई नहीं यार, आपके पास यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स है, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इसका एक का वैल्यू है 6 ओम, एक का वैल्यू है 3 ओम, एक का वैल्यू है 2 ओम। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3। अब बात सुनिए, आपका जो आंसर है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 6 होगा इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, ये सीरीज में रहेगा। किसके साथ? अगर आप 3 ओम और 2 ओम को पैरेलल, एक बात सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो एक बात को। अगर आप ये 3 ओम और इस 2 ओम का रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, मुझे पता नहीं है आंसर क्या आएगा, पर हम ये बोल सकते हैं जो भी आंसर आएगा वो 2 से कम आएगा, जो भी आंसर आएगा 2 से कम आएगा, क्योंकि मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट होता है। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लेस देन 2 होगा। अब अगर कोई भी नंबर जो लेस देन 2 है उसको 6 से ऐड किया जाए तो आंसर तो लेस देन 8 ही आएगा। हम बन गया मोर देन 6 एंड लेस देन 8। तो ये रहा मेरा यहाँ पे कहानी, ये रहा x, ये रहा y। तो क्या कर रहे हैं हम लोग 3 ओम और 2 ओम को पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं इन अ सीरीज विद 6 ओम। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। देखो बात समझ में आएगी, इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि पैरेलल में पता है कि जो आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट देन लेस देन रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो हो गया, फिर ये हो गया सर्किट। इसका सॉल्यूशन कर लेते लोग। डायग्राम तो बना दिए हैं, अब ये डायग्राम होगा, अब वो बना लो। यहाँ पर क्या होगा, यहीं पे बना लेते पहले से। ये 6 ओम तो यहीं पे रहेगा, इसको कुछ नहीं होने वाला है, ये एज इट इज यहाँ रहेगा। अब ये जो रोल ये R2 और R3 प्ले कर रहा है उसके जगह एक सिंगल रजिस्टर आ जाएगा, और ये हो गया पॉइंट Y, ये हो गया पॉइंट X। ये है R1 जिसका वैल्यू है 6 ओम, इसका वैल्यू मुझे पता नहीं कितना आएगा, उसको X मान ले रहे हैं हम। और फिर फाइनली इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, कहानी खत्म। इसको R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, जो हो जाएगा R1 प्लस X। ये x कितना हो जाएगा डायरेक्टली बोलते हैं, ये x जो होगा वो होगा 3 इंटू 2/3 प्लस 2, मतलब 6/5, मतलब 6/5। 6/5 मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/10 1.2 ओम। ये हो जाएगा 6 प्लस ये 7.2 ओम। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे R2 is parallel to R3, so its equivalent resistance is क्या होगा, x is equals to R2 into R3 by R2 plus R3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, जो वैल्यू आ रहा है वो है 1.2 ओम। एंड फाइनली R1 and X are in series, therefore R equivalent is equals to R1 plus X। वैल्यूज पुट करो, कितना आ जाएगा 7.2 ओम आंसर। देखो ये जो आंसर आया
ये जो आंसर आया वो 6 से ज्यादा है एंड 8 से कम है। बस हो गया, और कुछ नहीं। डन, डन, ठोको ताली। ओके, अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, एकदम इजी है, यहाँ कोई झमेला नहीं है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। ये तो बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो, प्लीज ट्राई करो इसको खुद से। ये दोनों सीरीज में है। लो भैया सर्किट बना दे रहा हूँ। मेरा सर्किट आपका ऐसा कुछ है, सर्किट कुछ ऐसा है। अब देखो लिखना सिखा दिया आपको, लिखना सिखा दिया, अब लिखेंगे नहीं हम। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम, और सारा 6 ओम ही है। ये भी 6 ओम। सबको नाम देते हैं, इसको R1, इसको R2, इसको R3। अगर इसका इक्विवेलेंट बनाया जाए तो ये R1 और R2 सीरीज में है, उसके जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 + 6। R1 और R2 की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा 6 ओम ऑलरेडी है ही, R3 का वैल्यू ऑलरेडी 6 ओम है, इसको हम x मान लेते हैं, वो हो जाएगा R1 + R2, ये हो जाएगा 12 ओम। और ये हो गया ऐसा, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा इसका एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा ए बी, और इसका जो वैल्यू होगा आर इक्विवेलेंट वो हो जाएगा सिंपली x इंटू R3/Rx प्लस R3। कितना हो जाएगा 12 इंटू 6, 12 इंटू 6/12 + 6 18। तो कैंसिल कर दो, ये 6 से 3 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया 4 ओम। फिर आर इक्विवेलेंट इज 4 ओम, आर इक्विवेलेंट जो आया वो है 4 ओम। आंसर इजी। अब आपको होमवर्क मिलने वाला है बहुत सारा, चलो। फाइन, ये आप एक सेकंड सेव किया उसको। अब आपको होमवर्क मिलने वाला है, ये आप प्लीज ट्राई करो, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आया था आईसीएसई 2020 में। इजी, इजी। चलो, ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क कर लो। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है, इसके जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, इसके जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, और फिर दोनों सीरीज में है। बात समझ में आया? इसका अगर इक्विवेलेंट बनाओगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, फिर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आया ना? ठीक है। और अगर बात कर लें ऑप्शन टू का, ऑप्शन टू क्या बोला है? स्टेट whether the resistivity of wire changes with change in thickness of wire or not. Obviously it changes. Resistance changes with, resistance changes with thickness of wire, with thickness of wire, as resistance is inversely proportional to cross sectional area. Answer ठीक है, ट्राई करना। यहाँ क्या बोला है? अच्छा, उसका होमवर्क दिया, सेव किया हम। इस सेविंग का प्रॉब्लम मुश्किल हो सकता है। हाँ चलो आ जाओ इसमें, ये क्या बोला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला सुनो। यहाँ बोला है a combination of three resistors in series, a combination of three resistors in series। क्या बोला है? आपके पास 3 रेजिस्टर्स है इन सीरीज। आपके पास कितना रेजिस्टर्स है? 3 रेजिस्टर्स है इन सीरीज। फाइन। अब क्या बोला है? 4 similar sets, 4 similar sets are connected in parallel। 4 similar sets मतलब कि ऐसा बोला है, ये एक मान लीजिए पॉइंट x और y के बीच में है, और ऐसा ही
4 सेट्स पैरेलल में कनेक्ट, मतलब ऐसा 1 2 3, 1 2 3, सेट 2, 1 2 3, 1 2 3। ये 4 सेट ऐसा आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए ये टर्मिनल है, इसको कुछ नाम नहीं देते, इसको नाम नहीं देते हैं। इस टर्मिनल का नाम है एक्स ए और टर्मिनल बी। अब बोला है आर इक्विवेलेंट निकालो, इसके बीच में बोला है। ओ और भी कुछ बोला है, सॉरी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच इज 2 ओम, सब 2 ओम है, सब 2 ओम है, सारे के सारे 2 ओम है, सारे के सारे आर है, आर 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 आर, और ये आर का जो वैल्यू है वो है 2 ओम। बात समझ में आया? अब खुद ही सोचो एक बार, अगर ये सेट सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? हम बोल सकते हैं इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपली, सिंस ये सीरीज में है तीनों, इसका जो एक्स मान लेते हैं वो हो जाएगा 2 + 2 + 2 विच इज 6 ओम। सही है? तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, हम बोल सकते हैं समथिंग लाइक दिस। ये हो गया 6 ओम, फिर से एक रेजिस्टर है, ये भी 6 ओम का, फिर से एक और रेजिस्टर है, ये भी 6 ओम का, फिर से एक और रेजिस्टर है, ये भी 6 ओम का, और ये चारों आपका पैरेलल में है। देखिए बात समझ में आया कि नहीं आया? ये फिगर और ये फिगर सेम है ना? फाइन। अब अगर इन चारों के पैरेलल में है, इन चारों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर आएगा, इन चारों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर आएगा, इन चारों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आएगा, इसको हम आर इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। अब सिंस चारों रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में है तो हम बोल दें आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 6/n। नहीं समझ में आया? हम डायरेक्टली अगर बोलते हैं आपको आंसर है 6/4, मतलब 3/2, मतलब 1.5 ओम आंसर। समझ में आया क्या हुआ? देखो समझ में आया कि नहीं आया? हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम था। तो सुन लो पहले, हाइलाइटर चाहिए मुझे, हाइलाइटर चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, हाइलाइटर, ये रहा हाइलाइटर, ये रहा येलो। हाँ इसको बड़ा चाहिए मुझे। हाँ ये एक रेजिस्टर था, इसके जगह पर ये आ गया, ठीक है? सिंस ये सीरीज में था 2 + 2 + 2 6 आ गया, इसके जगह पर ये आ गया 6 ओम, इसके जगह पर एक और ये आ गया 6 ओम, और इसके जगह पर ये एक और आ गया 6 ओम। अब क्या हुआ कि ये और ये पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में है तो हम बोल दें, एक सेकंड सॉरी, मिस्टेक मिस्टेक, एक सेकंड भैया, कहाँ गया? अरे रुको यार, कहाँ गया? ओए, मिल रहा है पेन, सॉरी। हाँ तब तो सिंपल सा बात है ना, आपके पास 4 रेजिस्टर्स है इन पैरेलल, देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is 1/r equivalent is equals to 1/6 plus 1/6 plus 1/6 plus 1/6, ये हो जाएगा 4/6। therefore r equivalent हो जाएगा 6/4 which is equals to 3/2 which is 1.5 ओम आंसर। आई होप समझ में आया। ठीक है, चलो इसको। अब क्या बोला यहाँ पर? बोला है a uniform wire of resistance 27 ohm is divided into 3 equal pieces and they are joined in parallel, find the equivalent resistance of parallel। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, ये आप होमवर्क करोगे, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, इसको हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर से ट्राई करना आपको। और फाइनली एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है? बोला है आपको a circuit consists of resistance
1 ohm in series with parallel arrangement of 6 ohm and 3 ohm. Calculate the total resistance in the circuit. Draw a diagram for the arrangement. समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला? सिंपली क्वेश्चन बोला है a circuit consists of 1 ohm resistor. The circuit diagram is as follows. The circuit diagram is देखो, आपके पास एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है 1 ओम. अब बोला है दिस इज इन सीरीज विथ अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम. आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 6 ओम एंड 3 ओम एंड 6 ओम. ये दोनों पैरेलल में है और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इज इन सीरीज विथ दिस. और फिर बोला है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दो बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. कुछ भी मान लो. बात समझ में आया? अब इसका आंसर दिया हुआ है, आप खुद सॉल्व करो. सॉल्यूशन आप करो इसका. इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? ये तो एज इट इज यहाँ पे एक रह जाएगा, ये R1. इन दोनों के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा. ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया R1. इसको x मान लो. और फिर फाइनली इन दोनों के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा जो सीरीज में है. ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट व्हिच विल बी इक्वल्स टू R1 प्लस x. और ये है आपका R2, ये है R3. यहाँ से आपको पता है x का कितना होगा, R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R3. जो आएगा वो आंसर है आपका. ठीक है, ओके. ओ भाई साहब, नहीं हो रहा है. चलो कोई बात नहीं, आ जाओ. 2009 में आया था ये क्वेश्चन. 2009 में आया था. क्या बोला है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज 4 ओम. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज 4 ओम. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. देखो भैया, अगर इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाए कुछ ऐसा बनेगा. ये पॉइंट ए, ये गया ऐसे. ये 4 ओम और ये x ओम सीरीज में है. हम डायरेक्टली बोल दे इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टर आएगा जिसका वैल्यू होगा 5 प्लस 6. एंड अगर हम इन दोनों का बात करें तो इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टर आएगा जिसका वैल्यू होगा 8 प्लस 4 12 ओम. ये हो गया पॉइंट बी. इतना समझ में आया? अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं तो मुझे बोला जा रहा है कि इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस आ रहा है ए और बी में और इन दोनों का वैल्यू है 4 ओम. जो आर इक्विवेलेंट आया इसका वैल्यू है 4 ओम. बात समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन बोला है आपको. सिंस दीज टू आर इन सीरीज, the value becomes 5 plus x. These two are also in series, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया 12 ओम. बस हो गया, सॉल्व कर लो. बस इसको मान लेते हैं हम R1, इसको मान लेते हैं R2. therefore here आप बोल सकते हो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2. अब बस वैल्यूज पुट कर दो. R इक्विवेलेंट कितना है? 4 है. तो 4 इज इक्वल्स टू R1 कितना है? R1 है 5 प्लस x इंटू 12 बाई 5 प्लस x. कैंसिल कर दो इसमें. 5 प्लस x, 5 प्लस x प्लस 12. तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा. 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 इज 60 प्लस 12x. और ये हो गया 5 प्लस 12 17 प्लस x. ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 इंटू 7 34. 68 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 60 प्लस 12x. तो ये 60 को इधर ला दो तो जाएगा 68 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4x.
ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 8x। यहां से आ गया आपका 8x इज इक्वल्स टू 8, तो x का वैल्यू आ गया 8/8 विच इज 1 ओम। तो ये जो x है, जो x का वैल्यू है वो होगा 1 ओम। आंसर। एक ये बात समझ में आया कि हमें, ठीक है, ऐसे अप्रोच करना इस क्वेश्चन को। एंड सिमिलरली ये वाला आप होमवर्क ले लो, इसका आंसर दिया हुआ ये सेम क्वेश्चन ही है, ये भी मुझे लगता है, हाँ सेम ही क्वेश्चन है। देखो आंसर वन ही होनी है, प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका सेलिना से आया था, और अगर आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पर, ये सेम क्वेश्चन आपका आईसीएसई 2009 में आया था। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने सेलिना अच्छे से कर लिया, सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है आईसीएसई 2012 में। आओ जल्दी दिखा दो उसको। बोला फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो हम इसको बोल सकते हैं, ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा है, ये पॉइंट मेरा पी है, यहाँ से एक 3 ओम का रेजिस्टर गया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टर गया 5 ओम, यहाँ से एक रेजिस्टर गया 2 ओम, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट पी, ये है 3 ओम, ये है 5 ओम, ये है 2 ओम। और ये जो सर्किट आपका ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया गया है, हम बोल नहीं सकते इसको ऐसे बना दे रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे बना दे रहे हैं हम। ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम। अब ऐसे बनाया गया, इसका मतलब ये सर्किट कुछ ऐसा ही तो है ना, ये सर्किट एक्चुअली में कुछ ऐसा ही है। ये हो गया 3 ओम, और यहां से 2 वायर, एक ऊपर जा रहा है ऐसे, और एक नीचे ऐसे आ रहा है, और फिर यहाँ पर ऐसे आके ऐसे मिल रहा है, और यहाँ से एक नीचे गया ऐसे। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये 5 ओम, ये 2 ओम। अब तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके जगह पर ये हो गया एक सिंगल रेजिस्टर, सीरीज में है दोनों, यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टर, और यहाँ पर ये हो गया ऐसे, ये सीरीज में है, ये हो जाएगा 20 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट, अब इसका इक्विवेलेंट बना लो, इसका इक्विवेलेंट बनाना कुछ ऐसा बन जाएगा, इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टर, ये ऑलरेडी 3 ओम है, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टर आ जाएगा, ये हो गया क्यू क्यू क्यू, ये ऑलरेडी 2 ओम है, इसका वैल्यू x मान लो, कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 5 इंटू 20/5 प्लस 20, ठीक है। तो 100/25 4 ओम आ जाएगा इसका वैल्यू। तो अब इसका इक्विवेलेंट बना लो, तीनों सीरीज में है, ये ये सीरीज में है, तो इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टर आएगा, जिसका वैल्यू होगा कितना 3 प्लस आर इक्वल टू आएगा, उतना होगा 3, ये वाला वैल्यू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, आर इक्वल जाएगा 9 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम करा देते हैं, बट टाइम मेरे पास है नहीं, पर आप खुद से ट्राई करना इसको, होमवर्क इसको हम आगे ले लेंगे, ठीक है। ये ट्राई करेगा खुद से, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ ही है, कुछ चाप नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग लेवल अप, गेम को लेवल अप कर चुके हैं। सो थैंक यू, गुड नाइट।